Hello everyone, welcome to my channel. Students, in previous video I was telling you about Subbu. Subbu was a great success in films, and he was so successful that his success overshadowed and dwarfed his literary achievements. मतलब इतना सक्सेसफुल था वो फिल्म्स में कि उसकी सक्सेस ने उसके लिटरेरी टैलेंट को, उसकी उपलब्धियों को छोटा बना दिया था, कम इम्पोर्टेंट बना दिया था. ओवरशेडोड होता है टू मेक समथिंग लेस इम्पोर्टेंट, ड्वार्फ होता है टू मेक समथिंग स्मॉल, इस चीज़ को छोटा बना देना. तो फिल्मों में इतनी ज़्यादा सक्सेस थी उसकी कि उसका जो साहित्यिक ज्ञान था, उपलब्धियाँ थी, वो उसके आगे कुछ भी नहीं था. ओके, और सो हिज क्रिटिक्स फेल्ट एंड द क्रिटिक्स क्या होते हैं? आलोचक. एंड द क्रिटिक्स हैड ऑल्सो द सेम ओपिनियन अबाउट हिम. He composed several truly original story poems in folk refrain and diction, and also wrote a sprawling novel, Thilana Mohnambal. So he wrote, composed means wrote, he wrote original story poems. ओरिजिनल उसने स्टोरी पोएम्स भी लिखी हैं. और डिक्शन मीन्स पोइटिक स्टाइल, ये एक पोइटिक स्टाइल होती है. फोक रिफ्रेन एंड डिक्शन, ये इस पोइटिक स्टाइल में उसने स्टोरी पोएम्स भी लिखी. ही रोट स्टोरी पोएम्स इन हिज पर्टिकुलर स्टाइल एंड ए स्प्रोलिंग नॉवल. स्प्रोलिंग मीन्स बिग. ही ऑल्सो रोट ए बिग नॉवल नेम्ड थिलाना मोहनम्बल with dozens of very deftly etched characters. And there are dozens of characters. There are dozens of characters in this novel. Which novel? Thilana Mohnambal. And the characters are deftly etched. Etched means portrait. Deftly means cleverly. बहुत ही cleverly portray किया गया है इन characters को. ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से इन कैरेक्टर्स को दिखाया गया है थिलाना मोहनम्बल में सुबू के द्वारा. ही क्वाइट सक्सेसफुली रिक्रिएटेड द मूड एंड मैनर ऑफ द देवदासीज ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी. और उसने बड़ा ही सक्सेसफुली जो है रिक्रिएट कर दिया मूड को, मूड एंड मैनर, तौर तरीके को, मूड को देवदासीज ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी. जो अर्ली 20th सेंचुरी में देवदासीज का जो मूड होता था, आपने मूवीज में देखा होगा ये देवदासी वगैरह के बारे में. तो उस तरह के मूड को उसने बिल्कुल सक्सेसफुली उसने मतलब दिखाया है. सुबू हैज शोन सक्सेसफुली द मूड एंड मैनर ऑफ देवदासीज ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी. ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर. इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू विल राइट इट इन हिज कैरेक्टर. ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर. सुबू वॉज an amazing actor also. He never aspired to the lead roles, but whatever subsidiary role he played in any of the films, he performed better than the supposed main players. However, he did acting very well, but he never aspired. Aspired means to have desire to get something, है ना, आकांक्षा रखना. But he never aspired to get the lead role in the films. Means he never aspired to get the main role in the film, the role of main hero in the film. But whatever subsidiary role he played in any of the films, he performed better than the supposed main players. But whatever role he got, subsidiary means जो भी सहायक रोल है, whatever subsidiary role he got from the producer, from the director, he accepted it and he played it very nicely. Even he played it better than the main actors. Okay, better than the main actors. And he had a genuine love for anyone he came across, and his house was a permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintances. Students, he was a generous fellow. Means he was very magnanimous. बहुत ही दयालु था, बहुत ही उदार हृदय का था. ठीक है, कैसे कह सकते हैं हम ये बात? He had a genuine love for anyone. Means he loved the people genuinely.
ही केम अक्रॉस एंड जिससे भी मतलब आदमी से मिलता था वो उससे वो जेन्युइन लव करता था. ही हैड ए जेन्युइन लव फॉर एनीवन ही met, and his house was a permanent residence for dozens of near and far relations and acquaintances. And his house was a permanent shelter for dozens of near and far acquaintances. Acquaintances जान पहचान वाले, familiar persons और ये रिश्तेदारों. उसका जो घर था वो उसके पास के दूर के रिश्तेदारों और जान पहचान वालों के लिए एक परमानेंट रेजिडेंस होता था. मीन्स दे केम टू हिज हाउस एंड स्टेड देयर कंफर्टेबली. दे लिव्ड देयर एज दे लिव्ड इन देयर ओन हाउस. जैसे वो अपने घर में ही रह रहे हो इस तरीके से उसके घर में रहते थे उसके दूर दूर के जो है रिश्तेदार वगैरह उसके जान पहचान वाले. It seemed against Subbu's nature to be even conscious that he was feeding and supporting so many of them. And Subbu never, did not mind it. Okay, कभी mind नहीं करता था Subbu इस चीज से. Subbu actually liked it, and he never became conscious that he was helping so many people, so many acquaintances and relatives, and he fed them also and supported them. Okay, means financially and in some other ways also. Such a charitable and improvident man, and yet he had enemies. He was a charitable person. Charitable जैसे धर्म करने वाला, धर्म वगैरह करने वाला या जो है दान वगैरह करने वाला. ठीक है. इम्प्रोविडेंट मैन, और इम्प्रोविडेंट होता है स्पेंडथ्रिफ्ट, बहुत खर्चा करने वाला. ही वॉज ए चैरिटेबल एंड इम्प्रोविडेंट मैन. ही स्पेंट लॉट ऑफ मनी ऑन द on his acquaintances or relatives whosoever means lived in his house. So yet he had enemies, and even then he had enemies. It was quite surprising that despite being generous and spendthrift for them, for the people, he had enemies. Okay, was it because he seemed so close and intimate with the boss? तो उसके एनिमीज थे, मतलब उसकी अच्छी नेचर के बावजूद भी. तो ऐसा क्यों था? चलो देखते हैं. Was it because he seemed so close and intimate with the boss? He had enemies because किस लिए उसके एनिमीज थे, मतलब शत्रु थे. तो क्या ऐसा इसलिए तो नहीं था? He was so intimate with SS Vasan, with the boss, or was it his general demeanor that resembled a sycophant's? Or if it was so that he was that he was a sycophant, he was a flatterer, means his nature was like that of a flatterer. तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि भाई उसकी जो नेचर थी वो एक फ्लैटरर की तरह हो, फ्लैटरर की नेचर की तरह हो, मतलब साइकोफेंट है ना. और देखते हैं. और हिज readiness means उसकी eagerness, तीव्रता, quickness, his readiness to say nice things about everything. या फिर ऐसा कि भाई उसमें वो मतलब बहुत ही क्विक हो अच्छी बातें कहने के लिए हर चीज़ के बारे में, कि भाई ज़्यादा ही रिसोर्सफुल अपने आप को वो दिखा रहा था बॉस के सामने. तो कहीं इस वजह से तो उसके शत्रु नहीं थे. चलो देखते हैं. In any case, there was this man in the makeup department who would wish the direst things for Subbu. So there was this man. यहाँ ये आदमी था, कौन, किसकी बात कर रहे हैं हम? सुब्बू की बात कर रहे हैं. There was this man in the makeup department who would wish the direst things for Subbu. एक मिनट. तो
यहाँ पर मतलब कोई ऐसा आदमी था मेकअप डिपार्टमेंट में जो मतलब वुड विश द डायरेक्ट थिंग्स फॉर सुबु, जो सुबु के लिए डायरेक्ट थिंग्स भी मतलब विश कर सकता था, यानी कि उसके शत्रु थे उसके अच्छे नेचर के बावजूद भी। तो ऐसा कोई आदमी था मेकअप डिपार्टमेंट में हु वुड विश द डायरेक्ट थिंग्स फॉर सुबु, हु एक्चुअली विश्ड even the worst things for Subbu. Okay, you saw Subbu always with the boss, but in the attendance roles. Actually, Subbu could be seen with the boss. Okay, but in the attendance roles, but he was seen with him as attendance. एक तरह से अटेंडेंस के रूप में ही देखा जाता था उसको, मतलब उसके साथ, बॉस के साथ, ठीक है, कि भाई चलो अभी बॉस के साथ आया है। तो द बॉस बट इन ही वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट, कंप्राइजिंग अ लॉयर एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स। तो जो बॉस था, वैसे बॉस के साथ वो मतलब ऑफन दिखता था, तो जैसे एक तरह से भी चलो हाँ भी अटेंडेंस हो गई, बॉस के साथ आया है। ही वॉज ग्रुप्ड अंडर अ डिपार्टमेंट कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट, बट एक्चुअली ही वॉज केप्ट इन द स्टोरी डिपार्टमेंट। ही वॉज असाइंड वर्क देयर, ठीक है। बॉस के साथ आता तो था, पर ऐसा नहीं है कि बॉस ही हो गया हो, या ठीक है। तो बस उसको वहाँ स्टोरी डिपार्टमेंट में उसको काम दिया गया था, वो स्टोरी डिपार्टमेंट के ग्रुप में ही था। कंप्राइजिंग ए लॉयर, जिसमें एक लॉयर था, मीन्स स्टोरी डिपार्टमेंट कंसिस्टेड ऑफ ए लॉयर एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स, एंड देयर वाज ए ग्रुप ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स ऑल्सो। द लॉयर वाज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइजर। लॉयर जो था वो ऑफिशियली लीगल एडवाइजर उसको माना जाता था। द लॉयर वाज ऑल्सो known as legal advisor, but everybody referred to him as the opposite. था तो लीगल एडवाइजर कि भाई कोई लीगल हमें वो एडवाइस देता था उन लोगों को जो स्टोरी डिपार्टमेंट में थे, ठीक है, बट ही वॉज फेमस एज द ऑपोजिट। तो ऑपोजिट क्या हो गया? इलीगल एडवाइजर। इलीगल एडवाइजर के रूप में उसको मतलब रेफर किया जाता था। क्यों भाई? बिकॉज ऑफ हिज मीन्स नेचर, या बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क ही डिड समटाइम्स, जो काम वो करता था उसके नेचर की वजह से, ठीक है। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस हु वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परामेंटल। यहाँ एक एग्जाम्पल बता रहे कि जैसे वो वैसे तो लीगल एडवाइजर था, लेकिन उसको ऑपोजिट के रूप में जाना जाता था, यानी कि इलीगल एडवाइजर के रूप में जाना जाता था। तो ऐसा क्यों था? इलीगल एडवाइजर क्यों जाना जाता था उसको? कि वो कुछ काम ही ऐसे कर देता था। तो एक एग्जाम्पल यहाँ बता रहे हैं, एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस हु वॉज ऑल्सो extremely temperamental. Once there was a talented actress and she was a bit aggressive, थोड़ा सा temperamental थी वो, थोड़ा सा गुस्सा उसको आ जाता था। Once blew over on the sets. So blew over means became angry. So once that actress became angry on the sets, ठीक है, while everyone stood stunned, the lawyer quietly switched on the recording equipment. Means when she became angry and she started speaking something bad about the producer, the lawyer went secretly and switched on the recording. ठीक है, उसने रिकॉर्डिंग चालू कर दी। When the actress paused for the breath. When the actress paused for breath, the lawyer said to her, "1 minute, please." When she stopped for a while, the lawyer said, "1 minute, please." ऐसा उसने बोला, और क्या किया उसने? And played back the recording, and he started playing the recording which he had done. There was nothing incriminating. So there was nothing incriminating or unmentionably foul.
about the actress tirade against the producer. हालांकि मतलब वो गुस्से में बोली प्रोड्यूसर के खिलाफ कुछ, लेकिन इतना ऐसा देयर वाज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग, कुछ ऐसा इनक्रिमिनेटिंग नहीं था. इनक्रिमिनेटिंग मीन्स टू प्रोवाइड एविडेंस दैट somebody is guilty of a crime. ठीक है. और अनमेंशनेबली मीन्स ऑफेंसिव, फाउल, बुरा. तो ऐसा कुछ इतना ज्यादा, ठीक है, वो कुछ गुस्से में आ गई थी, भड़क गई थी, पर इतना कुछ उसने मतलब कोई सबूत के साथ और ऐसा कुछ नहीं बोला उसने. अबाउट द एक्ट्रेस टायरेट अगेंस्ट द प्रोड्यूसर. तो जो टायरेट उसने बोले, टायरेट होते हैं निंदा वचन, जो कमेंट्स उसने किए प्रोड्यूसर को लेकर के, तो वो उनमें कोई ऐसा नहीं था कि भी प्रमाण के साथ उसने बोला. बट व्हेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन through the sound equipment, she was struck dumb. But it was so that she heard her own voice on the recorder, and she was shocked to hear that people could do such things also. ठीक है, वो इस चीज को लेकर के दंग रह गई, स्टंड रह गई, सुन हो गई कि अच्छा लोग ऐसा भी कुछ कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग करके उसकी रिकॉर्डिंग ऐसा किसी को सुना भी सकते हैं और ये उसके लिए ही हार्मफुल हो सकता है फ्यूचर में. तो उसको उस बात का बड़ा धक्का लगा. अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, शी हैड नॉट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस दैट जनरली प्रोसीड अ पोजिशन ऑफ इम्पोर्टेंस एंड सोफिस्टिकेशन दैट शी हैड फाउंड हरसेल्फ कैटेपुलेटेड इनटू. कैटेपुलेटेड होता है थ्रो विद फोर्स, किसी को मतलब जबरदस्ती फोर्स करना. ठीक है. तो एक लड़की जो थी ये कंट्री साइड से थी, मीन्स रूरल एरिया से थी. शी बिलोंग टू रूरल एरिया एंड शी हैड नॉट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस. शी हैड नॉट मच एक्सपीरियंस, मच वर्ल्डली एक्सपीरियंस. उसको दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं थी. उसको ऐसा समझ नहीं था कि लोग इस तरह की हरकतें भी कर सकते हैं, और जिसके बारे में आप कुछ निंदा वचन बोल रहे हो वो किसी दूसरे को बता सकते हैं या रिकॉर्डिंग कर करके किसी को सुना सकते हैं. तो इस तरह की उसको दुनियादारी की समझ नहीं थी. ठीक है, उस लड़की को. तो दैट जनरली प्रोसीड ए पोजीशन ऑफ इम्पोर्टेंस एंड सोफिस्टिकेशन दैट शी हैड फाउंड हरसेल्फ कैटेपुलेटेड इनटू, कि जिस पोजीशन में उसने अपने आप को मतलब वो ले आई थी, कौन सी पोजीशन में, कि भाई फिल्म इंडस्ट्री में वो आ गई थी, और इस पोजीशन में एक इम्पोर्टेंट पर्सन बनने के लिए, एक सोफिस्टिकेटेड पर्सन बनने से पहले जो चीज़ें हमारे सामने आती हैं, ठीक है, उन चीज़ों का उसको कोई अंदाजा नहीं था कि भी इस तरह की भी चीज़ों का उसको फेस करना पड़ सकता है. ठीक है. आई होप इट इज क्लियर टू यू. शी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर. देन सिंस देन शी वॉज फ्राइटन्ड. ठीक है, तब से वो बहुत डर गई थी. उसको तो एक तरह से जैसे सदमा सा लग गया था. She had found herself, she never quite recovered from the terror, and she could never recover from that terror. Okay, that was the end of a brief and brilliant acting career. And in this way, her career was over. So the lawyer spoiled her career. उसके करियर को ही खत्म कर दिया लॉयर ने. ठीक है. एंड द लीगल एडवाइजर who was also a member of the story department. The legal advisor who was also a member of the story department. जो लीगल एडवाइजर था, जो लॉयर था, he was also a member of the story department. He was one of the members of the story department. जो story department के members थे, ये भी उनमें से एक था. And had unwittingly brought about that sad end. No, he was the cause of that sad end. Actually वो कारण था उस sad end का. Means he had spoiled the brilliant career of that actress. कि इसी ने मतलब उसके करियर को खत्म कर दिया था. ठीक है. While every other member of the department wore a kind of uniform, khadi dhoti with a slightly oversized and clumsily tailored white khadi shirt. The legal advisor wore pants and a tie, and sometimes a coat
that looked like a coat of mail. तो क्या बताया हुआ है कि हर कोई वहाँ पर जो स्टोरी डिपार्टमेंट में था वो a kind of uniform. Everybody in story department wore a kind of uniform, and the uniform included khadi dhoti with a little loose, oversized means loose, a little loose and roughly tailored, roughly stitched white khadi shirt. ठीक है. The uniform included a little loose means little unfit and roughly stitched khadi shirt along with khadi dhoti. The legal advisor wore pants, whereas the legal advisor wore pants, जबकि वो पैंट पहनता था, and a tie, और एक पैंट टाई सूटेड बूटेड होकर रहता था मतलब, and sometimes a coat, and sometimes he wore a coat that looked like a coat of mail. ठीक है. कई बार वो एक कोट पहनता था जो कि कैसा दिखता था, कोट ऑफ मेल की तरह. स्टूडेंट्स, कोट ऑफ मेल एक प्रकार का कोट होता है जो जिसमें कुछ मेटल के वायर्स वगैरह से कुछ डिजाइनिंग वगैरह होती है. यू कैन सी इट ऑन नेट, यू कैन सी द इमेज ऑन नेट टू कॉम्प्रीहेंड इट प्रॉपरली. ठीक है. तो एक प्रकार का कोट होता है मतलब. तो कई बार वो कोट ऑफ मेल की तरह दिखने वाला एक कोट पहनता था. Often he looked alone and helpless. He also looked alone and he was helpless. वो अकेला सा ही था, अलग थलग ही था स्टोरी डिपार्टमेंट में, और थोड़ा लाचार ऐसा है था. अकेला आदमी वैसे ही लाचार हो जाता है ना, एक ग्रुप में अगर वो अकेला सा होता है तो वैसे ही लाचार हो जाता है, थोड़ा हेल्पलेस सा था. अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक. ठीक है. कोल्ड लॉजिक वाला आदमी. He was a lawyer, so he always demanded logics, arguments. तो वो तो हमेशा आर्ग्यूमेंट्स चाहता था, वो तो हमेशा लॉजिक्स चाहता था, मतलब तर्क वितर्क चाहता था, वो हमेशा मतलब एविडेंस चाहता था, लॉजिक चाहता था बातों के पीछे. इन ए क्राउड ऑफ ड्रीमर्स की क्राउड में, मीन्स इन द क्राउड ऑफ पोइट्स एंड राइटर्स, ही लाइक्ड और ही वांटेड लॉजिक्स. सो ही वाज अ डिफरेंट मैन. वो एक थोड़ा अलग आदमी था. A neutral man in an assembly of Gandhitis and Khaditis. And जैसा कि अब वो लॉजिक चाहता था हर चीज में, तो a neutral man in an assembly of Gandhitis and Khaditis. और जो आदमी थे other members of story department means liked and followed Gandhi ji and मतलब खादी. So they were greatly influenced by Gandhi ji, and so they preferred khadi and all that. But the lawyer was such a fellow who was neutral. तो इन लोगों के बीच में लॉयर थोड़ा सा न्यूट्रल था. Like so many of those who were close to the boss, he was allowed to produce a film, and like so many other members in the story department who were intimate with the boss, he was also assigned a film to be made. He was also he was also permitted to make a film. ठीक है. उसको भी एक फिल्म बनाने के लिए मतलब उसको बोल दिया गया था कि भाई चलो वो भी फिल्म बना सकता था. ठीक है. तो उसको एक बार ऐसा फिल्म बनाने के लिए उसको बोल दिया गया. फिर क्या हुआ देखते हैं. A lot of roast talk and pancake were used on it. However, a lot of raw material and pancake were used to make that film. ठीक है. उस फिल्म को बनाया गया. उस फिल्म में बहुत सारा रोस्ट टॉक वगैरह यूज हुआ, पैनकेक भी बहुत सारा यूज हुआ. Not much came of the film, but the film was not successful and it could not earn much. इससे वो मतलब ज्यादा कमाई नहीं हो पाई. ठीक है. कुछ फाइनेंशियली ज्यादा बेनिफिट नहीं हो पाया. Then one day the boss closed down the story department, and this was perhaps the only instance in all human history where a lawyer lost his job because the poets were asked to go home.
फिर क्या हुआ, one day the boss was annoyed as the story department was unable to do something fruitful. ठीक है, कुछ फ्रूटफुल नहीं हो पाया था उसमें, मतलब खास, तो एक बार उसको गुस्सा आ गया. द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट, तो एक दिन बंद कर दिया स्टोरी डिपार्टमेंट को. एंड दिस वॉज द ओनली एग्जाम्पल इन होल ह्यूमन हिस्ट्री दैट ए लॉयर लॉस्ट हिज जॉब. कि लॉयर ने अपनी जॉब क्यों खो दी? बिकॉज द पोइट्स वर आस्क्ड टू गो होम, बिकॉज द पोइट्स एंड राइटर वर ऑल्सो आस्क्ड टू गो होम. कि वो फिल्म फ्लॉप हो गई तो उस टाइम एक बार जो ना गुस्सा आ गया उनको, क्या बोलते हैं, बॉस को, एसएस वासन को. ठीक है, तो उस टाइम उन्होंने स्टोरी डिपार्टमेंट को ही बंद कर दिया. अब जब स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया तो स्टोरी राइटर्स वगैरह लिखते हैं, पोइट्स वगैरह लिखते हैं, तो जब वही चले गए उनकी जॉब भी चलेगी, तो फिर लॉयर्स की जॉब भी चली जानी थी. जब लॉयर का वहां पर क्या काम. ठीक है, इस तरीके से जेमिनी स्टूडियो वॉज द फेवरेट हॉन्ट ऑफ पोइट्स लाइक एसडीएस योगियार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय. जेमिनी स्टूडियो वॉज ए फेवरेट प्लेस for the poets like S.G.S. Yogiyar, Sangu Subramanyam, Krishna Shastri and Harindranath Chattopadhyay. Means these poets often came at the Gemini Studios. They frequently visited Gemini Studios. वो frequently आते थे यहाँ पर Gemini Studios में. It had an excellent mess which supplied good coffee at all times of the day and for most part of the night. Actually it had a splendid mess. Mess एक जगह होती है, जैसे आपने हॉस्टल्स में सुनी होगी कि हॉस्टल्स में जहाँ बच्चे खाना खाते हैं, तो जहाँ खाना बनता है, ठीक है, कुछ खाने को मिलता है, बनता है, तो मैस होती है. विच सप्लाइड गुड कॉफ़ी. तो यहाँ भी जेमिनी स्टूडियोज में भी एक मैस थी. जेमिनी स्टूडियो हैड ए मैस वेयर गुड कॉफ़ी वॉज सप्लाइड, टेस्टी कॉफ़ी वॉज सप्लाइड and it was supplied at all times of day. पूरा दिन कभी भी, मतलब it was available at all times of the day and for most part of the night, and it could be relished for most part of the night also. रात को भी किसी भी टाइम इसका, मतलब इसको रेलिश किया जा सकता था, इसका मजा लिया जा सकता था कॉफी का. Those were the days when Congress rule meant prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment. अब उन दिनों में क्या था कि when Congress rule meant prohibition. In those days it was Congress rule and Congress rule meant prohibition. Prohibition means मनाही. उन दिनों में कांग्रेस रूल था और कांग्रेस रूल का मतलब था भाई बैन टाइप में, प्रोहिबिशन, इस तरह की चीज़ों पे प्रोहिबिशन. ठीक है, एंड मीटिंग ओवर ए कप ऑफ कॉफी वॉज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट. तो जब और चीज़ों के ऊपर बैन, मतलब प्रोहिबिशन था, तो कॉफ़ी तो एटलीस्ट इंजॉय की जा सकती थी साथ में. तो टेकिंग ए कप ऑफ कॉफ़ी एट जेमिनी स्टूडियो वॉज सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट. इट वॉज ए प्रॉपर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट एक्चुअली, है ना. पीपल कुड गैदर हियर एंड टॉक, दे कुड कम्युनिकेट एंड they could have a cup of coffee. ठीक है. Barring the office boys and a couple of clerks, everybody else at the studios radiated leisure, a prerequisite for poetry. जो ऑफिस बॉय को छोड़ करके, मतलब एक्सक्लूडिंग द ऑफिस बॉयज, बारिंग मीन्स एक्सक्लूडिंग, इसको ऑफिस बॉय को छोड़ करके एंड एक कपल ऑफ कलर्स, और कुछ कलर्स को छोड़ करके, एक कपल ऑफ 2 कलर्स को छोड़ करके, एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियोज, हर कोई जो था स्टूडियो में, रेडिएटेड लेसर. एक्चुअली एवरीबडी एक्सक्लूडिंग ऑफिस बॉयज एंड अ कपल ऑफ कलर्स enjoyed here, means enjoyed coffee here. ठीक है, a prerequisite for poetry, and it was actually a prerequisite means necessary. भाई पोइट्री लिखने के लिए लेजर टाइम तो चाहिए ना. पोइट्री लिखने के लिए या कुछ और मतलब राइटिंग वर्क करने के लिए थोड़ा पीस चाहिए, लेजर टाइम चाहिए. तो वो जो है इनको तो मिलता था, लेकिन ऑफिस बॉयज़ को और कपल ऑफ क्लर्क्स जो है, इनको वो चीज़ नहीं मिल पाती थी.
Most of them wore khadi and worshipped Gandhiji, but beyond that, they had not the faintest appreciation for political thought of any kind. Most of them preferred khadi and worshipped Gandhiji, liked Gandhiji, followed Gandhiji, but except but apart from this, they had not the faintest appreciation for political thought. Apart from this, they had not any political thought. They did not support any political thought of any kind. किसी भी प्रकार का कोई पॉलिटिकल थॉट वो सपोर्ट नहीं करते थे. बस इतना था कि वो खादी पसंद करते थे और गांधी जी को वर्शिप करते थे. ठीक है. नेचुरली दे वर ऑल अवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म. मीन्स दे वर अगेंस्ट. अवर्स टू होता है मीन्स वैसे हेट करना, डिस्पाइज करना, घृणा करना. हाउएवर दे डिस्पाइज्ड कम्युनिज्म. कम्युनिज्म होता है साम्यवाद. स्टूडेंट्स, साम्यवाद एक तरह से एक सिद्धांत दिया था कार्ल मार्क्स ने, जिसमें कोई ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा था कि मतलब सब जो है व्यापारी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सब लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, धन का समान वितरण होगा और इस तरीके से. पर कुछ लोग इस चीज़ के मतलब इस चीज़ के अगेंस्ट थे. ऐसा क्यों था कि ऐसे मानना था कि भी अगर सब लोगों को समान धन का समान वितरण अगर मतलब दिया जाएगा तो इससे जो है कंपटीशन मार्केट में ख़त्म हो जाएगा. और जिस आदमी में टैलेंट है फिर वो अपने टैलेंट का इस्तेमाल क्यों करेगा. जब सबको बराबर मिलना है, धन का समान वितरण होना है, तो फिर कोई क्यों मेहनत करेगा, कोई क्यों आगे बढ़ेगा और कोई क्यों जो है मतलब अपना टैलेंट दिखाएगा. तो इस तरीके से इसमें कुछ था कम्युनिज्म में. ठीक है. तो थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया कम्युनिज्म का. तो ये जो लोग थे ये कम्युनिज्म के बिल्कुल खिलाफ थे. ठीक है. थैंक यू स्टूडेंट्स. बाकी चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हैव लाइक्स. गिव लाइक्स if you find the video useful.